And I think we have almost everyone here. Let's revise few things. And I will ask questions to you. देखते हैं कौन आंसर सही तरीके से देता है. How are you? I'm good. Louder than that. ठीक है. How are you doing? Sorry. How are you doing? I'm well. That's alright. What's up? I'm doing great. What's up? What's up? Fine. What's up? I'm fine. What's up? Nothing Nothing going on. Yeah, so what's up का answer fine नहीं होगा. What's up का answer like what is going on. So you can say nothing is going on. या फिर short answer could be Nothing. nothing. ठीक है. अपना sorry. अरहम. Nothing. क्या बोलोगे what's up? Nothing. And tell me, can you tell me what's going on actually in your life? Very quickly, one statement only. For example, studies are going on, construction is going on in my house, or shopping is going on because of my brother's wedding. Yeah, studies. कह दिया मैंने. Learning is going on. Learning is going on. Walk is going on. Walk is going on. Reading is going on. Writing is going on. Writing, okay. Is going on. Sketching is going on. And Movies is going on. again, Movies is going on. movies are going on. Movies are Movies are. going on. What do you mean by movies are going on? मतलब देख रहे हो आजकल? चलो ठीक है, movies are going on. Yeah. Study is. Study is going on. Yeah, study is going on. Yeah. Traveling is going on. Exams are going on. Playing is going on. हो गया? नहीं बताओ तो वो lunch is going on. Lunch is going on. Yes. And school is going on. Summer vacations are going on. AC is going on. सही है? Yeah, because AC is not an event or something. It's a kind of an action. So AC is working. AC is working. सब चीजें चल रही हैं वो going on में नहीं आएगा. AC is working and study is going on. What? English is going on. Singing is going on. Gym is going on. अब समझ में आ गया होगा ठीक है आप लोगों को भी तो बताएं. Nothing is going on. Nothing is going on. Great, wonderful. So, what else did we learn? How have you been? Anybody will answer that? How have you been? I've been great. I've been great. I've been well. I've been perfect. I've been perfect. I've been wonderful. I have been in Pakistan. I have been In Pakistan. in Pakistan. How have you been का आंसर कोई होगा क्या अच्छा हूँ बुरा हूँ. Where have you been का आंसर ही होगा. So yeah, how have you been? How have you been? I've been cool. I've been good. I've been good. I've been bad. I've been I've been great. 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 Yeah, I've been great. I've been good. Okay. I've been good. I've been good. Yeah. And I've been sick. Okay. I've been ill कहते हैं आप very लगा दें मेरे लिए. I've been perfect. Okay. Who's remaining? One sentence only. I've been fantastic. I've been fantastic. No remaining? No? Everybody is done? Okay, great. Okay, well, there is one more statement. Is it working fine? Okay. Now there is one more statement which is अच्छा टेंशन नहीं लो लिखने की छोड़ दो. तुम्हें क्या करना है? सुनना है और बोलना है मजे करना है पूरे टाइम. ठीक है बाकी लोग जो लिख रहे हैं स्पीड मैच कर पा रहे हैं कर सकते हैं लिख सकते हैं लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा था अरहम के लिए कह रहा हूँ क्योंकि बेचारा लिखने में लग जाता है स्पीड कम है इसमें वरना आपकी जो आपकी आदत है उसी को कंटिन्यू करें चाहे तो आप लिखें चाहे ना लिखें मर्जी जो आपको बेस्ट लगता है बिकॉज ही कैन नॉट डिसाइड राइट नाउ तो आई एम डिसाइडिंग फॉर हिम क्योंकि ही इज स्मॉल द यंगेस्ट बट स्ट्रॉन्ग या दैट्स राइट यू आर स्ट्रॉन्ग सो देयर इज वन एक्सप्रेशन long time no see like long time huh? lamba time
You can measure it. Now, so long time and no see. पहले बोल देते हैं बाद में मतलब बताते हैं. Long time no see. 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 नहीं long time थे. Okay, so long time no see का कौन बताएगा मुझे? बड़ा आसान सा है वैसे. आपको मैंने एक्सप्रेस भी कर दिया. हाँ? काफी टाइम से नहीं किसे? काफी टाइम से नहीं किसे नहीं देखा? हाँ, जो सामने वाला. ठीक है. तो आप उससे जब मिल रहे हैं काफी अरसे बाद तो लॉन्ग टाइम नो सी इज अ वेरी इनफॉर्मल एक्सप्रेशन जो कि आप जानने वालों से कहें, दोस्तों से कहें. लॉन्ग टाइम नो सी यानी इतना अरसा हो गया मुलाकात ही नहीं. लॉन्ग टाइम नो सी. जरा बोलिएगा. Long time no इस see. तरह बोले बाकी काफी अरसा मुलाकात. Long time no Yes. see. Long time no see. Okay. Long time no see. Wonderful. Long time no see. Nice. Long time no see. Yeah. Long time no see. Great. Long time no see. Good. Long time no see. Okay. Long time no see. Nice. लॉन्ग टाइम नो सी Okay. लॉन्ग टाइम नो सी Uh-huh. लॉन्ग टाइम नो सी लॉन्ग टाइम नो सी लॉन्ग टाइम नो सी Nice. लॉन्ग टाइम नो सी So आप थोड़ी आवाजें निकल ली लोगों की अच्छा लग रहा है. Long time no see. Good. Long time no see. नहीं तुमने बहुत शॉर्ट कर दिया. Long time no see. Long time no see. Yeah, that's better. लॉन्ग टाइम नो सी So कब कहोगे जब काफी अरसे बाद किसी बंदे से मुलाकात होगी? With expression like long time no see. Long time no see. बॉडी बता रही है, इन्वॉल्व हो गई क्या? क्या मतलब आवाज ना भी है ना. फॉर एग्जांपल जैसे अभी कुछ हमारे माशाल्लाह नए लोग आए तो लॉन्ग तो वो भी समझ में आ जाए एक्सप्रेशंस के साथ. ना तो लॉन्ग टाइम नो सी इसका दूसरा मतलब क्या है? पूरा अगर इसको पूरा वर्जन दे दे जो कल सीखा था हमने. हाउ हैव यू बीन भी कहा था हमने लेकिन वेयर के साथ कहा था ना हमने. वेयर हैव यू बीन so long. Yeah. So where have you been so long? एक ही मतलब. Where have you been so long? Yeah, long time. No see. And इसके आंसर भी हमने कर लिए थे. Okay. So let's move on. उससे पहले कोई रिवीजन करते हैं कुछ चीजों का जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था. So if you can share one word with me, अपने पास से ही कर लें शेयर जो आपको याद है. या प्रोनाउंसिएशन था engineer. So मैं wrong बोलूँगा आप सही बोलिएगा. Engine. Good. Exit. Enter. And we will learn one more word. बाहर से ना कुछ लोग curiosity उनके अंदर आ रही है अंदर झांके जा रहे हैं. ऐसे से करेंगे. They are distracting me right now. Distract कर रहे हैं. बड़ा मुश्किल काम होता है. So एक जुमला है उसको कहते हैं मुहावरा है. थोड़ी इस मुहावरे में इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? Idioms कहेंगे. और दूसरा वर्ड आया proverbs. अब डिसाइड करते हैं कौन सही है. सिंगुलर कर देते दोनों. ठीक है. Idiom and proverb. So proverb और idiom दो वर्ड सुनने में आ रहे हैं. तो idiom वाले अपनी बात को जरा बताएं कि ये मुहावरे होते हैं. हाँ बताओ. बस पता है लेकिन बता नहीं सकते. अच्छा मुहावरा क्या होता है? Can you explain that to me in Urdu? चलिए idiom की एग्जांपल देते हैं कोई इंग्लिश में ही. नहीं एग्जांपल दे दो. बंदर के हाथ में अदरक जैसे. बंदर के हाथ में अदरक. So is it supposed to be an idiom? ये idiom उर्दू में इसको मुहावरा कहते हैं. Okay. या ज़रबुल मिसल कहते हैं. I'm not sure. I'm asking. Yeah. Look after example है proverb की या idiom की? Idiom की. So look after are two words. ठीक है. यानी कि एक verb है साथ में preposition है. ठीक. तो जैसे हाँ ना से जाने आंगन टेढ़ा हो गया. तो ये idiom है या proverb है? ये मुहावरा है या ज़रबुल मिसल है? या कहावत कहते हैं ना उर्दू में कहावत. चले कुछ भी ये doesn't really matter. नॉलेज में इजाफा होना है लेकिन नॉलेज में भी अच्छी चीज़ इजाफा कर लें. इंग्लिश नहीं अच्छी हो जाएगी इसको समझने से लेकिन फिर भी. So this sentence is not an idiom क्योंकि idiom जो होता है वो basically क्या होता है phrase होता है. अब phrase क्या होता है? More of a phrase is combination of words. ज़्यादा नहीं लिखना बोर्ड पे समझा देता हूँ.
कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी एक से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं होती इसकी। लुक आफ्टर, ख्याल रखना। फॉर एग्जाम्पल कम, गो अक्रॉस, इधर से उधर चले जाना, पूरा तो मीनिंग है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। फ्रेज है, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और लॉन्ग टाइम नो सी भी फ्रेज होगा क्योंकि इसमें हम वर्ड्स हैं, लेकिन नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी फ्रेज नहीं गिलाएगा, वो कंप्लीट सेंटेंस ही गिलाएगा, उनमें मुकम्मल सेंस मिल रही है। तो ईडियम में मुकम्मल सेंस नहीं होती। प्रोवर्ब क्या होता है? किस्सा, कहावत, ज़रबुल मिसल, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी, या क्यूरियोसिटी किल द कैट, यानी कि बिल्ली की जब मौत, नहीं, तजस्सुस ने बिल्ली को मार डाला। अब तजस्सुस क्या होता है? चीज़ों को जानने की ख्वाहिश, ये कैसे काम करता है, ये क्या है, इसमें क्या होगा, हाथ डाल दिया, बाल खड़े हो गए, करंट लग गया, क्या कह रही? पंचायत, अब पता नहीं पंचायत सही वर्ड है या नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को जानने की जुस्तजू होना। तो जैसे वो लड़के बाहर खड़े होकर जुस्तजू की क्या थी, जानने के हो क्या रहा है, क्लास हो रही है, ये लाइव सेशन हो रहा है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो वो अपने आप को क्यूरियोसिटी में डाल दिया। लेकिन अगर मैं जाके शाउट करता है क्या तुमने लगाया हुआ है, इंसान के बच्चे बनो और पता नहीं क्या क्या, तो वो ट्रबल में आ जाते, प्रॉब्लम में आ जाते। तो फिर ये जुमला सही साबित होता है, क्यूरियोसिटी किल द कैट। आप लोगों के साथ हुआ है कभी ऐसा? कोई नई चीज़ आई, आपने उसको हाथ में उठाया, उसको कुछ करना चाहा और टूट गया, या फिर ख़राब हो गया, अब्बू ने, अम्मी ने माशाल्लाह, फिर तो वो क्यूरियोसिटी थी आपकी। जरा बोलिएगा क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी किल द कैट। आई एम क्यूरियस, यानी इसका जो वर्ड नाउन एडजेक्टिव है वो है आई एम क्यूरियस, जानने की ख्वाहिश होना, आई एम क्यूरियस। क्यूरियस की स्पेलिंग भूलिए, तो क्यूरियस की स्पेलिंग निकालें, बताएं सही है या नहीं। ठीक है, सिस्टम भी चल रहा है, मोबाइल फोन भी होंगे आपके पास, सिस्टम चल रहा है। सो आई एम क्यूरियस, बोले सर आई एम क्यूरियस, आई एम क्यूरियस, क्यूरियस मतलब मैं जानने की मेरे अंदर ख्वाहिश होती है, आई एम क्यूरियस। तो हु इज क्यूरियस? आप में से कौन क्यूरियस है? जिसके अंदर जुस्तजू होती है, कुछ जानूं, नई नई बातें समझूं, सीखूं। बोले आई एम क्यूरियस, ओके, आई एम क्यूरियस, आई एम क्यूरियस, आई एम क्यूरियस, यू आर क्यूरियस एज वेल, ओके, एंड are you curious? You are too right now. You are a bit lazy. Okay, so curious, जुस्तजू वाला बंदा, ठीक है, I'm curious, right? मिला? सारे लोग लग गए, लेकिन अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया। CURIOUS, okay, that's right. So I'm curious. तो अपने आप को कह सकता है I'm curious. Now, normally कौन ज़्यादा curious होता है? उन लोगों के नाम लगा देते हैं। Like children are curious. और बताएं नॉर्मली कौन क्यूरियस होते हैं? Old people, English बोले नहीं। Old people are curious. और कौन होता है? पुलिस आर भी कह सकते हैं, पुलिस इज भी कह सकते हैं, पुलिस आर क्यूरियस, या काम है लेकिन होते हैं। एंड कोई भी जानवर भी लगा सकते हैं, कोई जानवर हो तो क्यूरियस बहुत ज़्यादा होता है। Dog is curious. Lion is curious. Dogs are curious. अच्छा क्यों रिपीट करवा रहा हूँ? ताकि क्यूरियस अभी ज़हन में बैठ जाए, ताकि बाद में रिवीजन करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और बताएं कौन क्यूरियस होता है? Yes. Yeah. Who is curious? Mouse is curious. Curious. That's all right. Mouse is curious. Yeah. क्यूरियस की क्या बताऊं? अच्छा सही स्पेलिंग, थैंक यू। कहाँ से पता चला? गूगल से। सो लेट्स कंटिन्यू। सो इंजन को एंजन कर दिया, एंटर को आपने एंटर कर दिया। आई एंटर इनटू द रूम या एंटर टू द रूम, सही जुमला क्या होगा? एंटर द रूम, दैट्स करेक्ट, एंटर द रूम, वंडरफुल। और कोई वर्ड बताइए। ओके, एंटर माय हम्बल अबोड, रूम की जगह हम्बल अबोड आ जाएगा, यानी कि कोई कैन यू गेट द चेयर फॉर समवन, वहाँ पर है चेयर,
क्लास में देख लीजिएगा बराबर में करने को मेरा कहते हैं गरीब खाना तो क्या होगा हम दो अबो और कोई वर्ड जो सीखा था हमने या कुछ प्रोनाउंसिएशन सो इज इट मैं गलत बोलता हूँ सही कर दीजिएगा फोटोग्राफी फोटोग्राफी फोटोग्राफर photographer and photo is photo yeah and other things कुछ और बताएं और क्या था Why are you gazing at me? हाँ हर चीज गोइंग ऑन में नहीं आ सकता था उसमें हमने कहा था कि बहुत आगे चल रही है तुम्हारी है बहुत टिकटिकी बांध के देख रहे हो Why are you gazing at me? या stop gazing at me. Okay पंखा चल रहा है Fan is going on? Fan is rotating, fan is working या fan is on बस कोई नहीं आएगा Fan is on दिमाग चल रहा है Mine is going on. Mine is on. Mine is going on. Mind is on Going on. Mind is going on Your mind is working या फिर आप अगर इसका मतलब ये है कि आप बड़ी ही हाजिर दिमाग हो तो आप हाजिर दिमाग कह रहे हैं कि you are very witty हाजिर दिमाग ठीक है तो you are very witty बोले सर You are very you are very witty या जो नहीं बोल रहा उसकी शादी ना हो माँ से दिल से गाय बने कि मेहनत कर रहा हूँ बोली नहीं you are very witty yeah not so witty those people who are not speaking हाँ जो रिपीट नहीं कर रहे वो ज़्यादा witty नहीं है so witty मतलब हाजिर जवाब या हाजिर दिमाग जो मौके पर ही जवाब दे दे या अच्छी तरीके से चीज़ों को टैकल कर ले witty now so that was a little revision सब revision नहीं करते सारा आगे बढ़ते हैं and क्या हुआ तेरी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है भाई क्या हो गया सिस्टम को लेके अच्छा तो जरूरी नहीं है छोड़ दें नेट कंप्यूटर ऑन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है बस सिर्फ एक वर्ड ही मालूम करना था एक आध बंदा कर ले काफ़ी ओके नाउ चले जी so today we'll talk little about क्यूरियोसिटी शुरू हो गई इसका इलाज बताऊं क्या है ठीक है जान हंस कम जहां पास इसका मतलब ये कि एक फैन ऑफ होगा लेकिन काम चल रहेगा ओके अब ऑन करके दिखाओ पासवर्ड डालो पासवर्ड एंटर द पासवर्ड एंड टर्न इट ऑन टीचर बोल रहा है टीचर ऑन है कंप्यूटर ऑन करने की पड़ेगी बेटा शादी नहीं होगी तुम्हारी Okay, now let's talk about it. So we're going to talk about nouns a bit. हम थोड़ा nouns के हवाले से बात करेंगे and it's a very simple and easy topic but we make some mistakes using them. इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि पूरा nouns के बारे में grammatical structure grammar के बारे में बात करेंगे no we'll just speak हम बोलेंगे ठीक है तो यहीं पर ही मैं कंटिन्यू कर देता हूँ so हमारे इर्द बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और जब उनको आप कोई रेफर करते हैं कुछ कह के तो वो उनको नाम देते हैं ठीक है सो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स ठीक है दीज आर नेमिंग वर्ड्स आप किसी को भी नाम देना चाहेंगे तो वो आप नाउन्स कहलाते हैं तो बताएं जरा कितनी चीज़ें मौजूद हैं हमारे इर्द फिलहाल कैन यू नेम देम नाम दे सकते हैं फैन एसी लाइट कंप्यूटर चेयर एयर कंडीशनर ओके मोबाइल So you all know these names in English. आप उसको उर्दू में बता ही नहीं रहे आप लोग कह ही नहीं रहे पंखा या कुर्सी या दरवाज़ा या मेज़ या हाँ but it means you already know that. इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश की क्लास है क्योंकि आप बाकी बातें भी उर्दू में कर रहे हैं वो पता नहीं है जो पता है आप इंग्लिश में बोल देते हैं so it means you already know the nouns so many nouns जो आपके इर्द गिर्द हैं तो वी डोंट नीड टू लर्न मेनी ऑफ देम क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ हमारी वोकैबुलरी नाउन में ही है जब आप उर्दू में बात कर रहे होते हैं तो उर्दू में बात करते करते भी इंग्लिश के अल्फाज यूज़ करते हैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं ठीक है तो वी आर ऑलरेडी हैबिचुअल कि हम नाउन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बस फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है स्ट्रक्चर्स उनको देने की ज़रूरत है स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं यानी कि
स्टार्टिंग कैसे होगी, बीच में क्या आएगा, एंड कहाँ पर होगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग सेइंग सब्जेक्ट नाउन समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारी ऑलरेडी नॉलेज में मौजूद है। तो अब आप नेम, यू विल नेम द थिंग्स नाउ, अब आप चीज़ों को नाम देंगे। वी विल यूज सम वर्ड्स स्टार्टिंग विद दिस, ये भी आपको पता है, ठीक है, एंड दैट। तो दिस का मतलब क्या है, करीब, समथिंग इज नियर टू यू, और एक होनी चाहिए, इट शुड बी वन थिंग, ठीक है। और दैट मीन्स फार फ्रॉम यू, दूर है आपसे, और एक होनी चाहिए। अच्छा, इंसान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिस और दैट, सोच के बताओ। नहीं Yes, Huh? This is not good. Yes, we can use this and that for humans and for non-humans, यानी इंसानों के लिए और गैर इंसान दोनों के लिए this और that इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ठीक है, स्पेशली जब आप फॉर्मल होते हैं तो किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, फॉर्मल यानी कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पहली मुलाकात है या अदाब का ख्याल रख रहे हैं, तो आपके अब्बू साथ खड़े हैं, टीचर सामने, तो आप क्या बोलते हैं, ही इज़ माई फादर की जगह दिस इज माई फादर। This is my father. ठीक है, इसी को इंट्रोड्यूस जरा सब मिलकर रिपीट, दिस इज माय फादर, एंड फादर, दिस इज माय टीचर। ठीक है, एक दफा और करते हैं, वेल फ्रेंड, ओके, माय फ्रेंड, दिस इज माय एनिमी, एंड माय एनिमी, दिस इज माय फ्रेंड। नाउ किल ईच अदर। सो whenever you are formal और आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो दिस बहुत अच्छा तरीका होता है किसी इंसान को इंट्रोड्यूस करने का। फोन उठाते ही क्या बोलते हैं आप, उसके बाद अगर नंबर अननोन है, अगर नंबर अननोन है तो आप क्या बोलते हैं, who is this। तो फॉर्मल तरीके से अगर बोलते हैं तो बोलते हैं who is this। सारी बातें कर ली, अरे कैसे हो, ठीक ठाक हो, कौन हो भाई, बताया नहीं तुमने, 1 घंटे बाद पूछ रहे हैं। तो वो तो अच्छा, दिस हैपेंस इन द पब्लिक प्लेस, जब आप डॉक्टर के विजिट का इंतजार कर रहे होते हैं या फिर लाइन में लगे होते हैं जमा कराने के लिए, आप बराबर से सारी बातें कर लेते हैं, अरे भाई धूप बहुत है, अरे बहन क्या बताऊँ, इतने मुश्किल से सारी बातें हो गई। नहीं, दोनों को कह रहा हूँ मैं, सारी बातें होने के बाद आखिर में बोलते हैं नाम तो बताया नहीं आपने, ठीक। तो दिस हैपेंस, दिस इज ह्यूमन नेचर, दैट्स ऑलराइट। सो फोन पे मालूम कर लिया करें पहले, हु इज दिस, हेलो, हु इज दिस। तो आंसर में क्या बोलता है इंसान, This is Michael. दिस इज माइकल, दिस इज असगर, Paul can tell me. एंड दिस इज मी, मैं हूँ। द बेस्ट आंसर, हु इज दिस, दिस इज मी, मैं हूँ, हूँ मी, मेरा दरवाजा खोल, हूँ मी। ठीक है, सो अबू से पूछे कौन है भाई, मैं हूँ बेटा, कौन मैं, अब अब्बा क्या बोलेंगे, आपके वालिद मोहतरम जो आपको खिलाते हैं, जिसने दरवाजे का लॉक लगाया है, उन्हीं हाथों से ऊपर करें कुंडी को, बताता हूँ फिर अंदर आगे मैं। सो दिस वी कैन यूज फॉर रेफरेंस। यहाँ पे दिस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल या वो नहीं है, बस ये जुमलों में आ जाते हैं। एंड कुछ लोग दैट भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन है जो एक वक्त में 50 पुशअप लगा सकता है, आप बोलते हैं मैं हूँ, दैट्स मी। ठीक है, तो दैट्स थोड़ा सा इनफॉर्मल है और अच्छा लगता है, दैट्स मी। कौन है जो शलवार कमीज पहनना ज्यादा पसंद करता है, दैट्स मी। और मेल्स में से दैट्स मी, ओके, या दैट्स हिम, ये नाम पता है तो नाम लगा दे, दैट्स अब्दुल, हाँ, मोहम्मद रेहान, ओके ओके। कौन है जो सपनों में आए, गाना याद आ गया मुझे। सो कौन है जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करता है, दैट्स मी। एंड लड़के भी ये वेस्टर्न ड्रेसेस ही हैं, उन्होंने शलवार कमीज पहना तुम लोग, दैट्स मी। नाइस टू मीट यू, हाँ, नाइस टू मीट यू, कई दफा मिलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे आते हैं, थोड़ा नेम्स की तरफ आ जाते हैं। सो जब आप दिस इज कह रहे हैं, एंड टू यूज व्हाट, नाम दे आपने यूज करना है यहाँ पे। अच्छा, एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, वो छोड़ो एडजेक्टिव फिलहाल। सो दिस इज ए पेन, सो हाउ वुड यू यूज दिस सेंटेंस।
क्या पेन आपके हाथ में हो या ना हो, सामने हो या ना हो, आप जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं. लाइक यू कैन से दिस इज अ पेन. मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, दिस इज अ पेन. व्हाट इज द क्वेश्चन इन योर माइंड? क्या सवाल है आपके जहन में? हाँ मतलब हाँ हाँ क्या मतलब there is a question ना? So we cannot use this without pointing. इशारा किए बगैर this इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो we have to point. जरा बताइएगा कुछ जुमले. This is a marker. अच्छा हम आ लगा रहे हैं. Remember आप कहने की आदत डालें क्योंकि आदत खत्म अब शुरू से डालनी है आपको. So ये भी टारगेट आज के टॉपिक है कि आ या ए आपके मुंह से निकले. क्या आ और ए ता नहीं लगाए. This is a book. Yeah. This is a pencil. This is a mobile. This is a mobile. This is a monitor. अच्छा remember, एफर्ट करो जुमलों में. जो जुमला आपको ऑलरेडी बोलना आते हैं अच्छे तरीके से, बहुत बेसिक से सेंटेंसेस, इसको भी एंजॉय करें और कोई एफर्ट से बोले. लाइक दिस इज अ मोबाइल. साउंड आपको अच्छा लगे बोल के, अरे मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ, अमेज करते हैं अपने आप को. ठीक है, कुछ दिखाएं और बताएं क्या है. This is a pen. दिस इज अ फैन. ओके, This is a receiver. अब ज्यादा दूर पॉइंट कर रहे हो तो दैट इज, और एसी का है तो एन आ जाएगा. दैट्स एन एसी. बोलो दैट्स एन एसी. ओके, इशारा करके बोलो इसके बारे में पूरा बोलो. दिस इज अ बॉटल. गुड. दिस इज अ कंप्यूटर. कंप्यूटर. यस. दिस इज अ माउस. दिस इज अ कीबोर्ड. वन सेंटेंस, एक जुमला तो बोले ताकि कुफर टूटे. दिस इज अ बॉय. हु इशारा करें ना. दिस इज अ बॉय. या This is a blank photo. दिस इज अ ब्लैंक बॉटल. वंडरफुल. इससे मौका मिलता है जब जुमले बनाते हैं और इस तरह के जुमले आते हैं तो आई गेट वेरी हैप्पी क्योंकि मौका मिलता है मुझे कुछ चीजें शेयर करने का. मैं जुमला लिखता हूँ तो बहुत ही अच्छा जुमला है. और सुनो 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 अभी आता है. दैट्स अ क्लॉक. दूर है ना. दैट्स अ क्लॉक. ओके, तो उन्होंने कहा दिस इज ए ब्लैंक bottle, right? This is a blank bottle. Where is his? Thank you. मैं अक्सर वर्ड्स खा लेता हूँ. लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग में देखा था मैंने, एक वर्ड खा लिया. This is a blank bottle, right? This is a blank bottle. This is a blank bottle. कोई फर्क नहीं पड़ता आ कहें या ए बोले. अब इनका जुमला है ये एक खाली बॉटल है. ये खाली बॉटल है, राइट? अब ब्लैंक का मतलब क्या होता है? खाली. इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये बोलिए. ब्लैंक क्यों नहीं बोल सकते? अगर हम ब्लैंक को उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो खाली है. तो खाली का वर्ड जब कोई से भी इंग्लिश में मिलता है हम लगाते हैं कहीं पर. तो दैट्स नॉट द वे इंग्लिश वर्क्स. आपको देखना पड़ता है कि ब्लैंक और एम्प्टी दोनों का मतलब उर्दू में तो खाली है, लेकिन ब्लैंक किस वर्ड के साथ आएगा और एम्प्टी किस वर्ड के साथ आएगा. तो बॉटल के लिए खाली होने के लिए हम कभी भी ब्लैंक नहीं लगाएंगे. क्योंकि क्यों नहीं लगाएंगे बताएं? क्योंकि नहीं लगाया जाता. बस ये दैट्स द बेस्ट आंसर. क्योंकि वो यूज नहीं करते जो नेटिव लैंग्वेज जिनकी है. ठीक है, अगर वो ब्लैंक कहते तो हम भी ब्लैंक कहते थे. तो उसके अलावा हम लॉजिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे. इतना दिमाग टाइम नहीं है हमारे पास. लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, कौन सी मैथ्स या बायोलॉजी सीख रहे हैं. सो वी डोंट यूज ब्लैंक विद बॉटल, वी यूज एम्प्टी विद बॉटल. This is an empty bottle. So this is an empty bottle. बोले सर this is an empty bottle. And this is a blank space. यानी कि this is a blank space. तो blank आप space के साथ लगा लें या blank आप mind के साथ लगा लें. His mind was blank. Mind was blank. Monitor is blank. यानी दिमाग उसका बिल्कुल. अच्छा खाली से मुराद ये नहीं था. माइंड खोपड़ी खाली है, लेकिन यानी कि माइंड वाज ब्लैंक का मतलब कुछ सोचे नहीं आ रही थी. बिल्कुल ऐसा हो गया था अजीब सा. माइंड वेंट ब्लैंक भी कैसे? माइंड वाज ब्लैंक. यानी पेपर आपके सामने आया, आपकी 3 साल की पूरी मेहनत जो आपने 3 घंटे के लिए की थी, टीचर ने सारे साल आपको तंग किया था कि 3 घंटों में तुम्हारा हिसाब किताब होगा. वो 3 घंटे जो आपके सामने इस वक्त शुरू होने जा रहे हैं और पेपर आपने देखा और आपने 5 क्वेश्चन याद किए थे कि 3 तो लगेंगे और 2 तो कर ही लूंगा, 35 नंबर तो आ ही जाएंगे. ये लड़कों की अप्रोच आमतौर पर. तो एक भी नहीं लगा.
माइंड क्या हो गया? Blank. माइंड वेंट या माइंड वॉज Mine was ब्लैंक। समझ ही नहीं आ रहा था, स्लो मोशन में सब कुछ हो गया। मक्खी के उड़ने के भी देख रहे हैं आप, अजीब सा हो गया। अब्बू का प्लास्टिक वाला रबर का चूल्हे का पाइप आपके जहन में उड़ता हुआ जा रहा है। किलो वाली लकड़ी, वो पुरानी वाली चप्पल जो अपन ने आज तक नहीं फेंकी, एक है क्योंकि उससे निशान अच्छा पड़ता है, पिटाई में आवाज़ बच्चे की ज़्यादा जोर से निकलती है तो अभी तक रखी है, तो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके जहन में आ रहा है। माइंड वेंट टोटली ब्लैंक। एंड लड़कियों की अप्रोच ये होती है, जाहिर सी बात है, 25 करोड़ सवाल करके याद करके जाओ, 3 तो लगी जाएंगे, 2 यानी 5 तो लगी जाएंगे जो आएंगे, तो माशाल्लाह आए लगी जाते हैं फिर आप, तो दैट्स अ गुड थिंग। सो आगे बढ़ते हैं। दैट्स सॉरी ब्लैंक, माइंड वाज ब्लैंक। सो हर वर्ड हर जगह नहीं लग, वर्ड बाय वर्ड नहीं लगाएंगे। पता क्या चलेगा आपको इस बात के बारे में कि कौन सा वर्ड कहाँ लगना है, कैसे पता चलेगा? इसी तरह पता चलेगा कि आप माशाल्लाह बोलेंगे, गलतियां करेंगे, या आप सुनेंगे और आपको पता चल जाएगा अरे हाँ ये यहाँ लगता है। तो एक्सपोज योरसेल्फ, अपने आप को एक्सपोज करें सुनने से, सुनने के जरिए और बोलने के जरिए। दैट्स द ओनली वे। ठीक है, हाँ रीडिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, तो उससे भी फायदा हो सकता है। आगे बढ़े। सो बात हो रही है दिस एंड दैट की, काफी हद तक आपने जुमले बनाए। अब बात करते हैं ए और एन की। हम ए भी लगा रहे हैं, एन भी लगा रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर नाउन आ रहे हैं, एक एक नाउन आ रहा है, तो ए और एन तो लगाना पड़ेगा लाजमी। कहीं कहीं नहीं भी लगता, बाद में बात करेंगे कौन सी वर्ड है। ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे? वेयर डू वी पुट ए एंड वेयर डू वी पुट एन, यानी कि आर्टिकल्स कहलाते हैं ये। नाम भी बताओ, फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़ना नहीं चाहिए। सो कहाँ लगाते हैं ए और कहाँ लगाते हैं एन? आराम से कोई बंदा मुझे बताए। एंड वॉवेल के साथ वॉवेल वर्ड्स जो आते हैं वहाँ पे एम यूज करते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें ए यूज करते हैं। सो राइट, सो आपने 2 वर्ड्स हमें इंट्रोड्यूस करवाए, वो लिख देते हैं। ठीक है, आपने एक कहा वॉल और दूसरा कहा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग ऐसी होती है ना। ओके, सो वॉल एंड कॉन्सोनेंट। सो वॉल्स अगर हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं, देन वी डिसाइड। सो कैन यू प्रोनाउंस इट? वॉल, वॉल, वॉल। सो वावेल अगर बोलेंगे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है ना, वावेल। दिस इज वन साउंड, वाव। सो वावेल 2 साउंड हो जाती है, लेकिन ये एक साउंड है, वाव, वाव, वॉल्स। सो वॉल्स के साथ आप कह रही हैं कि एन लगेगा, एंड द कॉन्सोनेंट्स के साथ लगेगा ए। वॉल्स में कौन कौन से लेटर्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। These are the 5 letters। अगर इनसे नाउन स्टार्ट होते हैं और सिंगुलर होते हैं, काउंटेबल होते हैं, तो हम एन लगा देते हैं, और बाकी नाउन्स जो होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रही है और सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो ए लगा देते हैं। क्या आप इस बात से एग्रीड है? तमाम लोग इससे एग्री करते हैं? यही रूल है, यही है। यानी मैं एग्जांपल के तौर पे, दिस इज डैश एग, दिस इज डैश एग, ऐसा ही है। तो हम एन लगाते, ए लगाते। This is an egg. This is an egg, right? That is, वो दूर रखी हुई है, that is dash umbrella. That is an umbrella. N लगाएंगे, U से आ रहा है ना, A, I, O, U. That is an umbrella. आपको मेरी टोन से लग रहा है हम किसी जब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मैं कुछ बम फाड़ने वाला हूँ। Okay, चलें, अब बनाइएगा। That is dash university. That is an university, हाँ? N लगा दे, that is an university। क्यों वो बना रहे हो अजीब से, हैं? बोलो, that is an university। तुम लोगों ने कहा, मतलब आप लोगों ने, इन्होंने बयान किया, आप सबने एग्री किया, you guys agreed to that। अब मुकर रहे हो, पीछे पलट रहे हो, a university, हैं? अब n university क्यों नहीं कह रहे? चले बोले जो अग्री करते हैं इस बात से, वो रूल है, पत्थर की लकीर है, कह दिया, मर्द की एक ज़बान, औरत की एक ज़बान। दैट इज एन यूनिवर्सिटी कहूँगा मैं, और कहूँगी, क्योंकि अभी रूल बताया आप लोगों ने। तो एन यूनिवर्सिटी वाले जुमला को बोल दे, उसको लगता है एन यूनिवर्सिटी है। दैट इज एन यूनिवर्सिटी। एनीवन? बोलो बोलो। तस्वीर नहीं आ रही, आवाज तो आ जाएगी कि मैंने कहा था। दैट इज एन यूनिवर्सिटी ना, क्योंकि रूल यही कहता है कि वॉवल्स के साथ जो भी नाउन स्टार्ट हो रहा है उसमें ए, ई, आई, ओ, यू लगा देना चाहिए। तो एक बंदा हमारे पास मौजूद है, दैट इज एन यूनिवर्सिटी। कोई है एन यूनिवर्सिटी वाला? चले, और कोई है जो एन यूनिवर्सिटी कहेगा? एन यूनिवर्सिटी, हाँ। क्यों?
अभी तो रूल बना हमने, वॉल्स आपने एग्री किया था, क्यों? आई ओ यू आ तो रहा है यू, तो एन लगाओ, एन गलत क्यों है? एन सही है तो बोलो ना फिर, दैट इज एन यूनिवर्सिटी। एक और बंदा आई है, वो भी दैट इज एन यूनिवर्सिटी कह रहा है, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया जब हमें वॉल से होता है तो फिर वॉल से ही होता है। टीचर वाज राइट, दुनिया जाए भाड़ में। हाँ बोले। टीचर ने बताया कि कहीं पर जो होता है वॉवल की साउंड नहीं निकलती कई वर्ड्स में, तो वहाँ पर आ आता है, एन नहीं आता। यूनिवर्सिटी में हमारी टीचर ने हमें आ बोला था। टीचर ने ये बताया कि यूनिवर्सिटी में नहीं लगेगा, नहीं, या रूल जो समझाया? वर्ड्स वॉवल की साउंड नहीं निकालते उनके साथ ए आता है, बेशक वो वॉवल से क्यों न हो। तो रूल क्या है? वॉल्स को देखें या साउंड को देखें? साउंड वॉल्स को तो ना देखें, वॉल्स की तो बात नहीं की ना टीचर ने, साउंड की बात की थी शुरू से ही, या बाद में पलटा मार दिया था? साउंड की हाँ, बात साउंड की बात की। तो ये कह रही है कि इनके टीचर जो थोड़ी बहुत कदरें प्रैक्टिस करके शायद आई थी आने से पहले। इंग्लिश में क्या किया? बैचलर्स। इंग्लिश में बैचलर्स होते हैं इसका, मुझे पहले पता नहीं था। इंग्लिश में बैचलर्स भी होते हैं। बैचलर तो किसी सब्जेक्ट में नहीं होता, बस मेजर्स होते हैं 3-4 सब्जेक्ट। इंग्लिश एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, वो उन्होंने माना। हाँ, लेकिन मास्टर्स तक खैर वो फर्क नहीं पड़ता, मैंने कुछ भी नहीं किया इंग्लिश में, आपके सामने इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, खैर है। सो पढ़ाई करके आई होंगी ना, प्रैक्टिस करके आई होंगी, समझ कर आई होंगी, जब भी समझाया होगा। बाकी मेरे टीचर्स जो हैं उनको आप, अपने टीचर्स को आप कहते हैं सलूट करें, उल्टे हंस। Let me tell you, it's very simple, it's not difficult at all। और रूल समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सुन के तो आप खुद ही एन लगा रहे हो, सॉरी ए लगा रहे होते, क्योंकि आप परवाह ही नहीं करते। भाड़ में जाए रूल, ए यूनिवर्सिटी होता है, हमें पता ही नहीं रूल्स क्या होते हैं। हमने सुन के सीखी है लैंग्वेज, हमने थोड़ी रट्टे लगा के किताबों में लिख के डेफिनेशन लिख के 5-5, 6-6 और पागल हो गए थे। So there is no, the simple rule is sound of the vowel, not the vowel। साउंड ऑफ द वॉल से स्टार्ट होगा, एन लगा देंगे। साउंड ऑफ द वॉल क्या है? अलिफ की साउंड, उर्दू में साउंड हो जाएगा, ठीक है। ए ई आई ओ यू की साउंड क्या है? अलिफ की साउंड है, सिंपल, ठीक है। तो जब आप अलिफ से कोई नाउन स्टार्ट हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो क्या लगा देंगे आप? एन लगा देंगे। लेट मी गिव यू सम अदर वर्ड्स। तो फॉर एग्जांपल ये जो है, ये मेंबर पार्लियामेंट है, तो ही इज डैश MPA। अब बताएं क्या लगाएंगे? सब लोग आराम से प्रोसेस कर लें। He is AMPA, he is NMPA। पहले बोलते खुद ही समझ में आ जाएगा। He is NMPA। He is AMPA। He is NMPA। चलिए सब मिलके बोलें। He is AMPA। He is NMPA। He is NMPA। He is NMPA। कौन सा सही है? NMPA, क्योंकि M जो है वो साउंड देता है अलिफ की, या वॉल साउंड देता है। So this is like he is NMPA। MBBS, he is NMBBS। And there are so many words like nouns like that जिसमें अलिफ की साउंड आ रही है, वो vowels नहीं है। क्लियर है? अब प्रॉब्लम तो नहीं होगी? That's right। So A और N की साउंड को देखें वॉल्स की, और वॉल्स को ना देखें। Okay, let's move on। ये क्लियर हो गया? Now let's move on, आगे बढ़ते हैं। Can you name things here again? दोबारा से कुछ चीजों को नेम देंगे जल्दी जल्दी, जो आपके सामने अपने ऊपर। This is a monitor, okay? Yeah? This is an AC. That's an AC. Okay, and that is a clock. Okay. This is a fan. That is a camera. Okay. This is a stand or tripod. This is a book. This is a book, right? This is a book. Okay. Yeah. That is a board. This is a wall. Okay. This is a pen. This is a register. That's a wall. Okay. अब देखिए, जब आप बोल रहे थे फिर मैं बोलता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? म्यूजिकल रिदमिक साउंड चेंज होती है। तो अगर मैं आपके बोलने के बाद मैं बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा ऐसे से बोल रहे हैं अपने आप से। लाइक मैंने कहा, आपने कहा दिस इज अ वॉल, अपनी तरीके से जो भी बोला आपने, फिर दिस इज अ वॉल, या दिस इज अ मॉनिटर, सो या दिस इज अ रजिस्टर। तो यू नीड टू चेंज योर प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा सा एफर्ट लगा के उसको बेहतर बनाना है। और बताइए, चले आ जाते हैं
जो चीजें थोड़ी ट्रबल करेंगी आपको। क्या पहना हुआ है आपने? व्हाट आर सवाल कैसे करूंगा मैं? व्हाट आर दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, या क्या सवाल क्या करना चाहिए? ये आप क्या कैसे बताएंगे? दिस इज ग्लासेस, This is a socket. Socket. दीज, ओके दीज क्या है? दीज प्लूरल के लिए होता है, दीज आर एंड दोज आर, राइट? दीज आर एंड दोज आर ग्लासेस। तो ग्लासेस जो है प्लूरल है। उर्दू में तो एक चश्मा पहना है आप लोगों ने, और इंग्लिश में आपने प्लूरल पहना हुआ है। ये क्या चक्कर है? ग्लास तो है ना उसकी। लेकिन उर्दू में तो एक चश्मा है। सब कुछ लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, सो वी डोंट से वन। हाँ, कुछ तरीके हैं इसको एक कहने के, लेकिन बाद में बात कर लेंगे। सो दीज आर ग्लासेस, राइट? दैट्स फाइन। सो कैन यू टेल मी प्लूरल थिंग्स जो दिख रही हैं आपको? अपने पास भी हैं आपके कुछ प्लूरल? पूरा जुमला बोल दें। These are fingers. These are fingers, okay? जी बता दें भाई। These are eyes. These are chairs. These are chairs. These are pens. These are pens, okay? These are keyboards. These are keys or keyboards, yeah. These are monitors. These are computers. These are mouses. देखिए अब यहाँ पर मैं लेके आया, मैं चाह रहा हूँ आपकी तरफ से निकले जुमला, ताकि मैं उसको जब करेक्ट करूँ तो आपको भी मजा आए, मतलब ही मजा आए, जो भी है मुझे तो मजा आएगा। तो अभी और भी वर्ड्स आएंगे, पहले एक आ गया। इन्होंने कहा these are mouses. Mouse. This is a mouse. हाँ, ऑलरेडी these लग रहा है, तो प्लूरल बनाने की जरूरत क्या है? ये भी एक लॉजिक है, लेकिन नहीं, आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि these का मतलब ये है कि आप प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लूरल ही कहना पड़ेगा, ठीक है? सो these के साथ लाजमी प्लूरल नाम लगेगा। जैसे these are monitors, these are girls, these are boys, तो these are mouse को क्या कहेंगे? These are mouses। अब कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिसमें एस नहीं लगता, बल्कि वो इर्रेगुलर कहलाते हैं। तो माउस का प्लूरल क्या है? माउस का प्लूरल माउस नहीं होता। पहले क्यों नहीं बोला? अच्छा याद अभी, ठीक है। So these are mice. So mice मतलब ज्यादा चूहे, ठीक है? माउस मीन्स एक और mice मीन्स ज्यादा चूहे। So these are mice. इशारा करके बताएं इसके बारे में। These are These are hairs. These are hairs. Those are here. those are hairs. These are Hairs. मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो बोल ही नहीं रहा, आज मेरा मूड अच्छा है। क्या दिस इज हियर, दीज आर हेयर्स, क्या कहोगे? दीज आर हेयर्स, प्लूरल लगा रहा हूँ, दीज आर हेयर्स, क्या कहोगे? अगेन निकाल लो, दिस इज हेयर, सही, यही कहना है, ऐसे नहीं लगाओगे? अच्छा तुम्हारा दीन मान देंगे ना, ओके। सो क्या कहते हैं आप लोग? दीज आर हेयर्स या कुछ और? हेयर्स प्लूरल, अभी तक कोई सही नहीं है। चलो अब शूज पे आ गए, बात को शूज पे देख। नाउ रिमेंबर, दिस इज नॉट प्लूरल, ये अनकाउंटेबल है, तो इसमें एस लग ही नहीं सकता। We never say hairs, we always say hair. जब hair कह रहे हैं तो प्लूरल ही नहीं है, जब प्लूरल नहीं है तो these आएगा ही नहीं, बल्कि क्या आएगा? This is hair, this is my hair, this is silky hair, this is curly hair, yeah, ठीक है? जो again these are, this is straight hair, this is straight hair, okay? This is hair, this is my hair, this is curly hair, this is straight hair, this is silky hair, this is full of lice hair. No? Now, तो जू को क्या बोलेंगे? लाइस। नहीं, एक जू को क्या बोलेंगे? लाइस तो ज्यादा होगी ना, एंटी लाइस शैम्पू, एक जू भी मारता सारी जू में मारता है, एंटी लाइस शैम्पू। और लाइस का सिंगुलर क्या होगा? किसी ने नहीं सोचा आज तक? लिस। तो माइस की तरह लाइस होता है, जिस तरह से माइस का सिंगुलर माउस होता है, तो लाइस का सिंगुलर लाउस होगा।
ठीक है, और हाउस का प्लूरल हाइस। हाउस मतलब आई हैव वन हाउस, आई हैव टू हाइसेस, हाइस नहीं, लॉजिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। माउस का माइस, लाउस का लाइस, हाउस का हाइस नहीं, लॉजिक्स काम तो करती नहीं है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो बस यहाँ तक ही रखेंगे जहाँ तक है। तो देयर इज, सॉरी इफ आई से एक है तो क्या बोलेंगे, दिस इज, पूरा बोले जुमला, दिस इज अ लाउस, वन, दिस इज अ लाउस, एंड बहुत सारी निकालनी आपने हाथ में दिखा दी, दीज आर लाइस, दीज आर लाइस। तो भाई सिंपल नाउन्स का मामला चल रहा है फिलहाल। कुछ नाउन्स में एस लगेगा और कुछ नाउन्स में एस नहीं लगेगा। हाउ डू वी नो कि कौन से नाउन्स में एस नहीं लगेगा, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल अल्लाह जाने, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा बताएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कैसे पता चलेगा कि ये जो अनकाउंटेबल का ताल्लुक तो है नहीं ना। अभी तो हम बात कर रहे हैं प्लूरल एस के साथ बनाना है या प्लूरल बगैर एस के बनाना है। जब हम बोलेंगे प्लूरल बन नहीं सकता फिर अनकाउंटेबल आएगा, ठीक है। अभी उस पर आते हैं थोड़ी देर में। तो कैसे पता चलेगा कि एस लगा के प्लूरल बनाए और एस के बगैर प्लूरल बनाए, बताएं समझ कैसे पता चलेगा? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसी ने, नहीं और सही सुना आपने, रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको पता चलेगा। हाँ टीचर ने बताया था एक तरीका कि there is no way you can come to know, there is only one way that can help you, which is exposing yourself to the language। और लैंग्वेज के सामने एक्सपोज कैसे करते हैं हम? लिसनिंग, स्पीकिंग भी हो जाता है, लेकिन रीडिंग भी आपकी हेल्प कर सकती है इसमें कि यू आर रीडिंग समवेयर के वहाँ वर्ड लिखा हुआ है लाइस, आपने कहा ये लाइस क्या होता है, फिर आपने उसकी मीनिंग निकाली, या किसी ने बोला और आपने उससे पूछ लिया कि लाइस क्या होता है। So you can only listen or read and you can come to know कि इसका प्लूरल एस के साथ नहीं बनता, इसका प्लूरल बगैर एस के बनता है। There is no other way, और कोई तरीका नहीं है जानने का, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। Okay, so now let's do one thing। एक काम करते हैं, काफी सारे लोग जो हैं अभी लेजी हो गए। Can you tell me the time? 6 p.m. exactly। Okay, let's do one thing। So you guys will now do one thing। आप लोग एक काम क्या करेंगे कि आप लोग थोड़ी देर में जब मैं बोलूँगा उठें तो आप उठ जाएंगे। उठने के बाद क्या होगा कि you guys will talk to one person, कोई भी बंदा चूज कर ले और उससे आप बात करेंगे और कोशिश करेंगे जिसको आप जो आपकी बहन है या साथ आए दोनों आप लोग, कौन है आप लोग, फ्रेंड्स को तलाक थोड़ी देर के लिए दे दीजिएगा और किसी नए बंदे से कोशिश कीजिएगा। तो 1 मिनट आपने बात करनी है और 1 मिनट के बाद मैं क्या बोलूँगा, चेंज द पार्टनर, फिर आप नया बंदा ढूंढेंगे और उससे आप 1 मिनट बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अभी जानते नहीं एक दूसरे को। व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाई डू यू वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर पासपोर्ट नंबर, टेल मी योर 4 डिजिट्स कॉइन, सॉरी पेन, ठीक है, सब चीज़ें पूछ लीजिएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो आप कर सकते हैं, एंड इट्स ओनली 1 मिनट, पता भी नहीं चलेगा 1 मिनट कब ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बस शर्त ये है कि यू हैव टू ऑल स्टैंड अप, आप सब लोगों ने खड़ा होना है और किसी एक बंदे को चूज करना है, चाहे ऐसे खड़े क्या क्रॉस कर लें, ऐसे कर लें या फिर ऐसे कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो पहले तो हम ये कर रहे हैं आप लोग के एक दूसरे 3 सामने आमने जो आपके हैं उन्हीं से बात कर लीजिएगा, ये भी आप कर लीजिएगा, यहाँ पर हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो प्लीज लीव योर सीट्स, कम ऑन स्टैंड अप एंड ग्रीट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। Turn yourself, पीछे खड़े, yeah, that's right. And no, you don't have to turn yourself because Wani after you can turn yourself and talk to her, yes. And you 3 for a while can talk, yes. And yeah, start discussing. यहाँ पर जो extra है ना, यहाँ पर आ जाए आप, यहाँ आ जाए. You guys can come here. And you two start first for 1 minute. आप लोग जरा start करें 1 मिनट के. Yes. What's your name? Yeah, come on. पीछे खड़े, पीछे. अरे वो रहे ना पीछे. हाँ? नहीं करें क्यों? मशहूरी में